الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے میں ایک بہت بڑی عبادت ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف دراصل بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، دنیا کے کاموں سے کٹ کر مسجد میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے کہ بندہ اپنے دل کو دنیاوی مشغلوں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اس آیت سے صاف طور پر اعتکاف کا ذکر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ کیا ہے۔ اعتکاف سنت ہے۔ معزز سامعین، اعتکاف کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کی سنت ہے۔ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ حاضرین، اعتکاف کا اصل مقصد ہے دل کی اصلاح، اللہ سے قرب حاصل کرنا، گناہوں سے توبہ، شب قدر کی تلاش، کیونکہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، اگر انسان کو شب قدر مل جائے تو اس کی ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک علماء واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک بزرگ ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ہر سال 10 دن مسجد میں کیوں بند ہو جاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں اپنے رب کو ڈھونڈنے آتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کیا اللہ مسجد میں ملتا ہے؟ بزرگ رونے لگے اور بولے اللہ ہر جگہ ہے لیکن مسجد میں دل زیادہ جلدی مل جاتا ہے۔ معزز سامعین، اصل بات یہی ہے کہ جب انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوچئے، آج لوگ حج اور عمرہ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسجد میں بیٹھ کر اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی حکمت، علماء فرماتے ہیں اعتکاف انسان کو 3 چیزیں سکھاتا ہے۔ نمبر 1 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 2 اللہ سے محبت، نمبر 3 گناہوں سے نفرت۔ جب انسان 10 دن مسجد میں گزارتا ہے
तो उसका दिल साफ होने लगता है। एक और इबरत अंगेज वाक़या है। एक नौजवान गुनाहों में डूबा हुआ था। रमज़ान आया तो उसके दोस्त ने कहा, चलो इस बार एतिकाफ बैठते हैं। वो मजबूरी में मस्जिद में बैठ गया। 10 दिन के बाद जब एतिकाफ ख़त्म हुआ तो वो रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं मस्जिद में आया था गुनाहों के साथ, लेकिन अब मैं अपने रब की मोहब्बत लेकर जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एतिकाफ इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। मेरे अजीज़ साथियों, एतिकाफ की असल बुनियाद नियत है। जब इंसान मस्जिद में बैठता है तो उसे ये नियत करनी चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ कर रहा है। उलमा लिखते हैं, एतिकाफ 3 तरह का होता है। नंबर 1 एतिकाफ वाजिब, नंबर 2 एतिकाफ सुन्नत, नंबर 3 एतिकाफ नफल। सबसे पहले देखते हैं एतिकाफ वाजिब क्या है। अगर किसी इंसान ने मन्नत मानी हो कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं एतिकाफ करूँगा या एतिकाफ करूँगी, तो उस पर एतिकाफ वाजिब हो जाता है। दूसरा है एतिकाफ सुन्नत। एतिकाफ सुन्नत है रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ सुन्नत मुक़द्दा अल किफ़ाया है। अगर मोहल्ले की मस्जिद में कोई एक आदमी भी एतिकाफ बैठ जाता है तो सबकी तरफ से सुन्नत अदा हो जाती है। लेकिन अगर किसी मस्जिद में कोई भी एतिकाफ न बैठे तो पूरा मोहल्ला गुनहगार होता है। तीसरा है एतिकाफ नफल। एतिकाफ नफल है रमज़ान के अलावा भी जब इंसान मस्जिद में बैठे और नियत करे कि मैं एतिकाफ में हूँ तो वो नफिल एतिकाफ हो जाता है। एतिकाफ कब से शुरू होता है? अब सवाल ये है कि एतिकाफ कब से शुरू होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ 20 रमज़ान के दिन मगरिब से पहले शुरू हो जाता है। इंसान को चाहिए मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और एतिकाफ की नियत कर ले, और ये एतिकाफ ईद का चांद नज़र आने तक जारी रहता है। एतिकाफ की कुछ शर्तें हैं। एतिकाफ सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना। एतिकाफ सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। नंबर 2 अक्लमंद होना। पागल इंसान पर एतिकाफ नहीं है। नंबर 3 नियत करना। एतिकाफ नियत के बगैर सही नहीं होता। नंबर 4 मस्जिद में होना। मर्दों के लिए एतिकाफ मस्जिद में करना ज़रूरी है। औरतों का एतिकाफ, औरत अपने घर में एतिकाफ कर सकती हैं। घर में जिस जगह वो नमाज पढ़ती हैं उसी जगह एतिकाफ करें, लेकिन एतिकाफ के दौरान बेवजह घर के कामों में मशगूल होना सही नहीं। एतिकाफ में क्या करना चाहिए? एतिकाफ का मकसद मस्जिद में बैठकर ज़्यादा ज़्यादा इबादत करना है। इसलिए एतिकाफ में इन कामों का ख़ास एहतिमाम होना चाहिए। नंबर 1 कुरान शरीफ की तिलावत। नंबर 2 नफल नमाज। नंबर 3 ज़िक्रुल्लाह। नंबर 4 इस्तिग़फ़ार। नंबर 5 दुआ। नंबर 6 दीन की किताबों का मुताला। हदीस में एतिकाफ की हालत, हदीस शरीफ में आता है, जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, पूरी रात इबादत करते और अपने घर वालों को भी जगा देते। इससे मालूम हुआ कि आखिरी अशरे में इबादत का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। एतिकाफ तोड़ने वाली कुछ चीज़ें हैं जिनसे एतिकाफ टूट जाता है। वो क्या चीज़ें हैं?
नंबर 1, बिना ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलना। अगर कोई शख्स बिना शरई उज्र के मस्जिद से बाहर निकल गया तो एतिकाफ टूट जाएगा। नंबर 2, हमबिस्तरी करना। अगर एतिकाफ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी की तो एतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 187 में भी इरशाद फरमाया है, कुछ मस्जिदों में एतिकाफ बैठा हो। किन ज़रूरतों के लिए बाहर निकल सकते हैं? एतिकाफ करने वाला इन ज़रूरतों से बाहर जा सकता है, जैसे पेशाब या पखाना, वुज़ू, गुस्ल अगर ज़रूरत हो, खाना अगर मस्जिद में इंतज़ाम ना हो, लेकिन काम पूरा करके फ़ौरन मस्जिद वापस आ जाना ज़रूरी है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का एतिकाफ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी एतिकाफ का बहुत एहतमाम करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एतिकाफ करने वाला ऐसा है जैसे वो अपने रब के दरवाजे पर बैठा हुआ हो। सोचिए, जब इंसान किसी बादशाह के दरवाजे पर बैठ जाए तो वो उसे खाली नहीं लौटाता, तो जो बंदा अल्लाह के घर में बैठ जाए अल्लाह उसे कैसे खाली लौटा देंगे। एक वाक़या है कि एक बुजुर्ग आलिम एतिकाफ में बैठे। एक रात उन्होंने देखा कि मस्जिद में बैठे लोग रो रो कर दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ए लोगों, क्या मांग रहे हो? लोगों ने कहा, हम जन्नत मांग रहे हैं। बुजुर्ग रो पड़े और बोले, तुम जन्नत मांग रहे हो और फरिश्ते तुम्हारे लिए जन्नत की तैयारी कर रहे हैं। एतिकाफ करने वालों का क्या अज्र है? हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के बीच 3 खाइयाँ पैदा कर देता है। मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं। ए अल्लाह, हमें रमज़ान की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें एतिकाफ की बरकतों से माला माल फरमा। ए अल्लाह, हमें शब कद्र नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से ज़िंदा कर दे। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल और मकबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।